ಇವತ್ತು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅತಿಥಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಹಾರ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್. ಇವರು ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರು, ಪತ್ರಕರ್ತ, ಜೊತೆಗೆ ಕವಿಗಳು, ಕಥೆಗಾರರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈ ಕವಿತಾ, ನೈ ಧಾರಾ ಎಂಬ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂತನ ಸುಜನ್ ಎನ್ನುವ ದಿಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಕೆನೇನು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿಯೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈಗ ಪಟ್ನಾದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗಜಲ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವರು. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಲ್ 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 2012ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇವರನ್ನ ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಅನುವಾದದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇವರು ಮೈಥಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಅಂಕಿಗಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನುವಾದ ಅಂತ ಇವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ಭೋಜ್ಪುರಿ, ಮೈಥಿಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಗಿಕಾ ಭಾಷೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿತು, ಈ ಅಂಗಿಕಾ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು? ಈ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕರ್ಣನ ದೇಶ ಅದು, ಅಂಗದೇಶದ ಭಾಷೆ ಅಂಗಿಕಾ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯನ ವಹಿಸಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಪಟ್ನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ಜಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋಣ. ಈ ಅನುವಾದಗಳು ಹಿಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಗಲಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಹಿಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. आपसे मेरा जो परिचय हुआ वो बेंगलुरु में ही हुआ. जी. हाँ, शायद 2012 में. 2012 में. तो उस समय बसवेश्वर, अक्कमहादेवी, अलम प्रभु के बारे में बातचीत हो रही थी. तो कुतूहल बड़ा. जब हमने कहा कि वचन साहित्य का अनुवाद हो रहा है 2500 वचनों का, तो आपने स्वप्रेरणा से आपने ही कहा कि बिहार में जब आप इतनी भाषाओं में अनुवाद करा रहे हैं, अंगिका में क्यों नहीं हो सकता है. बिल्कुल. तो इन्हें आपका परिचय का ये एक भूमिका मैं बता रहा हूँ. अच्छा, आप बताइए, आपने अंगिका में कराया, तो ये जो वचन के अनुवाद की इसका जो अनुभव हुआ, उसका थोड़ा परिचय दीजिए. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं बसव समिति के प्रति और आदरणीय डॉक्टर टी.जी. प्रभाशंकर प्रेमी जी के प्रति अपना आभार निवेदित करता हूँ
कि मेरे बंगलोर प्रवास के दौरान उन्होंने वचन साहित्य से संबंधित एक बातचीत का मुझे अवसर दिया। और अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 2012 में मैं जब बेंगलोर आया था तो उस समय डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी और हमारी बातचीत साहित्य से शुरू हुई। डॉक्टर साहब हिंदी के अध्यापक, मैं भी हिंदी का अध्यापक, तो बातचीत होते होते कबीर की चर्चा हुई। कबीर की चर्चा हुई तो पहले हम ये समझते थे उत्तर भारत में कि कबीर की वाणी की जब हम चर्चा करते हैं, उनके विचारधारा की जब हम चर्चा करते हैं तो उनकी परंपरा हम बुद्ध से जोड़ते थे। लेकिन डॉक्टर साहब से परिचय होने के बाद मैं ये जानकर बहुत विस्मित हुआ कि दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में ही बसव जी और इनकी तरह के 173 संत कवियों की एक सुदीर्घ और लंबी परंपरा है, जिनकी विचारधारा से कहना चाहिए कि कबीर प्रभावित हुए। कबीर तो 16वीं शताब्दी के कवि हैं। तो वहाँ से मेरी रुचि बसव के प्रति शुरू हुई और मैंने धीरे धीरे, इन्होंने मुझे कुछ पत्रिकाएं, कुछ छोटा छोटा साहित्य मुझे पढ़ने के लिए दिया, तो उनसे मैं बसव मार्ग के माध्यम से या और भी कुछ दूसरी पत्रिकाओं के माध्यम से मैं इस लोकायत धर्मी परंपरा के संत कवियों से मैं अवगत होता गया। और बाद के दिनों में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा भी कि मैंने खुद अपनी प्रेरणा से मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि मैं जहाँ से आता हूँ बिहार में भी एक अंग क्षेत्र है जिसका नाम है, ये अंगिका वहाँ की भाषा है। अंग क्षेत्र की पहली चर्चा आप अवगत होंगे कि महाभारत में हमें तब जानकारी मिलती है जब दुर्योधन की ओर से अंग देश का राजा घोषित किया जाता है महादानी कर्ण को। तो लोगों का ध्यान जो है तब पहली बार उस अंग देश की ओर जाता है और उसी अंग देश की, अब वो क्षेत्र जो है कोसी, भागलपुर, वो अंग क्षेत्र है, उसमें लगभग बिहार, बंगाल और झारखंड मिलाकर लगभग उसमें 22 ज़िले आते हैं। 22 ज़िले हैं और लगभग 7-8 करोड़ लोगों की वह भाषा है डॉक्टर साहब, और बहुत ही समृद्ध भाषा है। बल्कि कहना चाहिए कि बिहार की जो 5 भाषाएं हैं वहाँ की, जिन्हें आप बोलियाँ कहते हैं, डॉक्टर साहब बहुत बेहतर तरीके से बता भी रहे थे कि वहाँ मैथिली है, वहाँ पर भोजपुरी है, मगही है, अंगिका और बज्जिका। उसमें सबसे पुरानी भाषा के रूप में उन 5 बोलियों में अंगिका आती है। तो मैंने एक सहज इच्छा जाहिर की, डॉक्टर साहब से मैंने अनुरोध किया था कि हम इसका अनुवाद अंगिका में भी करना चाहते हैं। और बाद के दिनों में डॉक्टर साहब के ही कोशिश से, और बाद में जब मैं आदरणीय अरविंद जत्ती जी से मिला तो वो तो एकदम संत पुरुष हैं, संत पुरुष हैं। उनसे मिलकर तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने भी कृपापूर्वक इसमें अपनी सहमति दी और इस तरह से वचन का यह अनुवाद का काम मैंने शुरू किया। उसी रुचि की वजह से कहना चाहिए कि इसकी प्रेरणा में तो आप थे, आप नहीं होते तो ये काम नहीं हो पाता मुझसे, और अगर आपसे मेरा परिचय नहीं होता तो इस समृद्ध विरासत जो यहाँ लोकायत धर्मी परंपरा रही है उससे मैं अवगत नहीं होता। तो ये मैं सचमुच डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ कि आपकी वजह से ये मेरा परिचय हुआ और ये बाद में इतना बड़ा काम वचन से मैं जुड़ सका और ये मैंने किया। अच्छा, ये वचन जो है इस शब्द में ही एक विशेष अर्थ है। हाँ, कबीर की वचनावली, वचन शब्द पहले से है। हाँ, वचन पहले से है, पहले से है। हाँ। लेकिन यहाँ जो वचन है केवल शब्द नहीं है, केवल पद नहीं है। जी जी, बिल्कुल। ये एक साक्षी पद है, साक्षी पद है। भगवान को साक्षी में रख करके जो शरण होते हैं, वो जो लिखते बोलते हैं, जी जी, जीवन बिताते हैं, अनुभव पाते हैं, उसी को वचन में लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये वचन जो है एक तरह से केवल साहित्य नहीं है, केवल साहित्य नहीं, केवल कविता नहीं है, ये एक भावाभिव्यक्ति, अनुभव की अभिव्यक्ति है। जी 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 जी। ये अनुभव शब्द जी जी, उत्तर में जब भी मैं जाता हूँ तो ये नया शब्द लगता है उनको। काव्य शास्त्र में अनुभव अलग है, ये जो शिवानुभव है, जी बिल्कुल, भगवान का अनुभव है,
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपको आश्चर्य होता है, ये वचन 25,000 से अधिक है। गवर्नमेंट से पब्लिश है, हमारे जी यहाँ जी है, जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 वॉल्यूम्स में है, 25,000 जी जी जी, वचनों का। उनमें से 2,500 को हमने 2,500 निकाला। इसमें है, जी जी, ये एक सैंपल के रूप में, सिंपल के रूप में। हाँ? तो बिल्कुल। ये मैं यही चाहता हूँ, उत्तर में जो भी संत वाणी है, जो भी लिखते हैं, वो सब छंद में ही लिखते हैं। छंद को छोड़कर लिखने वाले कोई है क्या उत्तर में? क्योंकि यहाँ जो है छंद है भी न भी, वचन आप देखेंगे तो लगता है बोल रहे हैं, लेकिन बोलते 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 वो कविता हो जाती है, कविता हो जाती है। यानी सहज कविता है। तो इस तरह की जो शैली है यानी संतों में, जी जी, जब बिल्कुल निर्गुण बिल्कुल संत की बिल्कुल, बात हम बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह उत्तर में इस प्रकार लिखने वाले कोई मिलते हैं क्या? बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें 2 बातें आ गई हैं। सबसे पहले तो वचन के बारे में, ये बात आपने सही कही कि कबीर इसे वचन कहते हैं, बसव से के वाणियों को हम वचन कहते हैं। बल्कि अगर आप सिख परंपरा में जाएं और वहाँ उनके जितने गुरु हुए हैं, उनकी वाणी को सबद कहते हैं। सबद, सबद। सबद। तो ये सबद हो या वचन हो, इसमें और साहित्य में एक बड़ा फर्क है। फर्क ये है कि साहित्य में केवल शब्द की संवेदना है, लेकिन वचन या शब्द में मनुष्य के अनुभव की संवेदना है। अनुभव। वहाँ साहित्य में अनुभव नहीं है, वहाँ संवेदना है, अनुभव नहीं है। यहाँ जो हमारे संत हुए, बसव हुए, या इनकी तरह के 173 जो दक्षिण भारत की परंपरा में जो बहुत सारे हमारे मुनि हैं, संत हैं, उनके जीवन का जो अनुभव है, वो अनुभव ऋचा बनकर, ऋचा मतलब जो उन्होंने अपने जीवन में रच कर देखा, अच्छा, अपने व्यवहार में लाकर देखा, और उसमें जो वाणी उनको अमूल्य लगी, उन वाणियों का यहाँ संकलन है। यह एक बात हुई। इसीलिए शब्द में या वचन में और साहित्य में यह एक मूलभूत फर्क है। हमारी परंपरा जो है यहाँ पर संतों के माध्यम से जीवन के दर्शन की अनुभूति कराती है, जबकि साहित्य जीवन की संवेदना की अनुभूति कराती है। और आप देखेंगे तो ज्ञान जो है मूल रूप से ज्ञान से दर्शन की यात्रा है। सही बात है। और हमारे जितने संत कवि हैं वो हमें दर्शन से जोड़ते हैं। ये जीवन क्यों है? आज भी हम यही बात करते हैं, बस वो दर्शन की बात करते हैं। जिस काम के लिए है, क्या हम उसको पूरा करने में लगे हैं कि केवल हम भौतिक विलास में लगे हुए हैं? एक बात। दूसरी बात, जो बुनियादी बात आपने कही कि हमारे यहाँ उत्तर और दक्षिण में एक फर्क है। क्या फर्क है? कि उत्तर के जितने संत हुए, जितने भी संत हुए, प्रायः सबने छंदों में अपनी बात कही। सही बात। छंदों में बात कही, और छंदों में बात करने की जो परंपरा है उत्तर में, वो अगर आप देखेंगे तो दूसरी तीसरी शताब्दी के बाद विकसित हुई। उसके पहले हमारे यहाँ छंद, ये छंद का मतलब जो तुकबंदी है, ये तुकबंदी के रूप में हमारे यहाँ वाणी नहीं मिलती है। अच्छा, नहीं मिलती है। आप देखें, आप जैनियों के यहाँ जाएं, आप बौद्ध के यहाँ जाएं, और इसके और पहले आप चले जाएं, हमारे यहाँ जो वैदिक साहित्य शुरू होता है, खुद वेद छंद में नहीं है। अच्छा, वेद में कोई तुकबंदी नहीं है, तुकबंदी नहीं, उनकी जितनी ऋचाएं उसमें कोई तुकबंदी नहीं है। लेकिन उससे भी पहले अगर आप जाएं, वैदिक सभ्यता शुरू होती है ईसा पूर्व 1500, लेकिन उससे भी 100 साल पहले उत्तर भारत में व्रात्य सभ्यता थी। उनका जितना साहित्य है, किसी में ये तुकबंदी वाला जो छंद है वो नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तीसरी शताब्दी के बाद लोगों की जो मतलब मेमोरी में जो हमारी मूल्यवान बातें हैं वो रहे, उसको ध्यान में रख करके हमारे संत कवियों ने छंदों में अपनी बातों को रचना शुरू किया कि वो उनकी जिह्वा पर रहे, वो उनके मन में रहे। सही बात है, ये मेमोरी की दृष्टि से। लेकिन दक्षिण में शुरू से ही मैं देखता हूँ कि यहाँ के जो संतों की वाणी है वो तुक छंद में है, तुक में नहीं। छंद एक व्यवस्था है। छंद क्या है डॉक्टर साहब? एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था विचारों की हो सकती है,
हाँ। ये व्यवस्था संवेदना की हो सकती है। अच्छा। जरूरी नहीं है कि ये केवल तुक की व्यवस्था हो। हाँ, सही है। तुक की व्यवस्था याद रखने के लिए ठीक है, याद रखने के लिए ठीक। लेकिन जो संवेदना की हाँ, यात्रा है, ये। जो विचार की यात्रा है, अच्छा। जो जीवन के अनुभव की यात्रा यात्रा है, है। उसकी भी एक छांदसिकता होती है, उसकी भी एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था और उत्तर में यह वैचारिक प्रक्रिया जो है छंदों की, वो अधिक समृद्ध है, हाँ, अधिक समृद्ध है। सही है। इसे और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि दक्षिण से ही उत्तर मैदानी इलाकों में जो है ये भक्ति की लहर, भक्ति की धारा यहाँ से गई। हाँ। लेकिन शुरुआती दौर में क्या है कि हम लोग उत्तर काल के बहुत सारे संत कवियों से परिचित थे, रामानंद हैं, वल्लभाचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बसव की विरासत और इस परंपरा से हम फिर भी अपरिचित थे। अच्छा। फिर भी अपरिचित थे। लेकिन अब बसव को पढ़ने से तो ऐसा लगता है मेरे लिए कि ये मेरे प्राणों में है। अच्छा। ये मेरे उत्तर के जो मैदानी इलाके, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों के जीवन की सांस में है। ये वही बात करते हैं जो वहाँ के लोगों में बहुत शुरू से चली आ रही है। और यहाँ पर मैं एक नाम लेना चाहूँगा, और ये नाम जो है ये हमारे यहाँ बुद्ध से वो बड़े थे और जैन परंपरा से छोटे थे, और जिनका नाम है मक्खली गोसाल। अच्छा। हाँ, जी, हाँ। मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल बहुत बड़े संत कवि हुए, और वो ये जो है जैन की परंपरा में है, वो बुद्ध की परंपरा में है। अच्छा। बल्कि उनसे एक कदम आगे हैं। कैसे आगे हैं? वो आगे इस तरह से हैं कि हमारे यहाँ जो ये जैन साहित्य, जैन दर्शन है या बौद्ध दर्शन है, वो वैदिक दर्शन के प्रतिरोध में विकसित हुआ। वैदिक दर्शन के जो आधार स्तंभ है वे चार थे। वे चार उसके आधार स्तंभ है। नंबर 1 है कर्मकांड, नंबर 2 है वर्ण व्यवस्था, नंबर 3 है ईश्वर, और नंबर 4 है पुनर्जन्म। इन चारों में से ये जो जैन दर्शन के लोग हैं और बौद्ध संप्रदाय के लोग हैं, ये पुनर्जन्म को छोड़कर 3 का विरोध करते हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं। ये बात अलग है कि वे उसकी व्याख्या अलग करते हैं। लेकिन ये जो मक्खली गोसाल थे, मक्खली गोसाल चारों का विरोध करते हैं, पुनर्जन्म का भी विरोध करते हैं। यही कारण है कि बौद्ध भी उनके विरोधी थे, जैन भी उनके विरोधी थे, बहुत सारे संत और मुख्य रूप से जो मक्खली गोसाल थे वे व्रात्य सभ्यता के संवाहक कवि थे। और उत्तर भारत में उनका एक दर्शन आया जिसको हम सियातवाद कहते हैं, आजीवक दर्शन। आजीवक दर्शन की उत्पत्ति के प्रवर्तक मक्खली गोसाल थे। अच्छा जी। और आज भी जो उत्तर भारत की जो किसानी परंपरा है, जो श्रम संस्कृति है, उसके मूल में मक्खली गोसाल है। और वही परंपरा आगे विकसित होकर कबीर तक आती है। ये मक्खली गोसाल किस शताब्दी के थे? वही मैंने कहा अभी आपसे, मक्खली गोसाल का जन्म जो है ये ईसा पूर्व 4वीं सदी में हुआ था। अच्छा। और ये गौतम बुद्ध से 4 साल बड़े थे मात्र। अच्छा। यानी उसके पहले उनका जन्म हुआ। हाँ, जन्म से। वो जिस समय आप याद करें, हमारे यहाँ दास प्रथा थी। वो दास प्रथा से आते थे। अच्छा। उनके पिताजी मंकी ऋषि थे, और उनका जन्म जो है गौशाला में हुआ था। गांव से बाहर होता था गौशाला, इसीलिए उनका नाम दोनों को मिलाकर मक्खली गोसाल पड़ा। अच्छा। वो दलित संप्रदाय से, दलित नहीं कहना चाहिए, ये तो एक फिनोमिना है आजकल, ये कहना चाहिए आदि निवासी थे। आदि निवासी थे, यहाँ के मूल निवासी थे, और ये बिहार के थे। अच्छा। और उनके जो सबसे बड़े भक्त हुए सम्राट अशोक। अच्छा जी। आगे चलकर वो बौद्ध हो गए, लेकिन जो उनके पौत्र थे महेंद्र, अच्छा, उन्होंने क्या किया कि मक्खली के जितने वचन हैं, अच्छा, जितने उनकी कविताएं थी, सबको बिहार में एक गया शहर है, गया के बगल में एक बराबर नाम की पहाड़ियां हैं। अच्छा। उनकी गुफाओं में उन्होंने सबको उत्कीर्ण करवा दिया। आज भी हम और बहुत दिनों तक तो उससे डिकोड नहीं किया जा सका कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो मूल क्या कहते हैं प्राकृत भाषा में थी, तब की प्राकृत भाषा में थी। शुरू में तो उसे डिकोड नहीं किया जा सका, लेकिन बाद में जब उसे डिकोड किया गया तब हमने देखा। आप उनका महत्व इस बात से लगाएं
कि ये जो महाभारत के रचयिता थे हाँ, वेदव्यास उनके समय समकालीन थे। अच्छा, और वेदव्यास ने बहुत सारी बातें श्रीमद् भागवत गीता में वो उन्होंने मक्खली गोसाल से लिया। अच्छा, जैसे यदा यदा ही संघर्ष, ये यदा यदा ही संघर्ष चायन कर्म कुर्मो अंगानी सर्वशा, है ना, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्य तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। या फिर वो बहुत पॉपुलर उनका छंद है कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और देखिए उस जमाने में जब दास प्रथा थी, अच्छा, सब लोग सोच अपने जीवन से हताश निराश थे कि मेरे जीवन का कुछ नहीं होना है। तो ये मक्खली गोसाल थे जिनके पदों ने उनको समझाया कि तुम जो कर रहे हो इसका फल आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगा ही। क्योंकि जो तुम्हारा कर्म है उसका कार्य और कारण का आपस में संबंध होता है, जिसको उन्होंने सियातवाद कहा। अच्छा, उन्होंने कहा कि सियातवाद का मतलब है जहाँ कार्य और कारण का संबंध हो। अगर ये कार्य हो रहा है तो उसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा, और कारण अगर है तो आज नहीं तो कल तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। अच्छा, इस पंक्ति ने तब के दासों में एक जिजीविषा का संचार किया कि जो हम कर रहे हैं हो सकता है कि उसका लाभ हमें न मिले, लेकिन हमारे अगली पीढ़ी को इसका लाभ निश्चित मिलेगा। और उनमें हताशा निराशा उदासीनता जो है वो धीरे धीरे कम हुई। उनको मक्खली गोसाल ने एक बात और समझाई। उन्होंने लोगों को समझाया उदास का होने का मतलब निराश होना नहीं है। अच्छा, उदास कहते हैं आप, अगर आप उदास का संधि विच्छेद करें, उत्त जोर आस, यानी जो ऊंचे आसन पर बैठा हुआ हो। अच्छा, और ऊंचे आसन पर बैठने का आशय यह है कि हम जो काम कर रहे हैं हम इसकी चिंता छोड़ते हैं। हम कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, अच्छा, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, इसको किए हम आगे बढ़ गए। तो इसका फल जब मिलेगा तब समाज को पता चलेगा कि जो व्यक्ति ये कह रहा था वो कितने ऊंचे आसन पर बैठा हुआ बाद में मालूम होता है, बाद में मालूम होगा। तो उनका जो यह आजीवक दर्शन, उनका जो यह दर्शन था, यह सियातवाद था, उसने जो है उत्तर भारत के जो किसानी परंपरा के लोग थे, जो श्रम संस्कृति के लोग थे, उनमें जीवन का बहुत बड़ा संचार किया, जिसको आगे चलकर 16वीं शताब्दी में कबीर ने उसको थाम लिया और उसने अपने समय के लोगों को उसकी चेतना जगाई। लेकिन इन दोनों के बीच यानी 2000 साल की अवधि है, बसव आते हैं और बसव भी वही बात करते हैं जो बात मक्खली गोसाल कर रहे थे, वही बात कर रहे थे। अच्छा। यानी ये 12वीं शताब्दी में करते हैं। 1600 साल पहले जो मक्खली गोसाल ने जो बातें कही थी वही बात परंपरा आती है बसव तक और उस परंपरा के तमाम कवियों तक। अब वो लिटरेचर मिलता है क्या? वो लिटरेचर मिलता है, वो लिटरेचर बहुत बड़ा काम है जी, बहुत बड़ा ये काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा बैकग्राउंड है बसव दर्शन के लिए मक्खली गोसाल का। जी 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 हाँ जी जी, ये भूमिका के रूप में जी 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 बहुत बड़ी बात है। ये जैसे आपने ही शुरू किया, जैसे हम लोग सामान्यतः बसवेश्वर कहते ही कबीर के साथ तुलना करते हैं, या उस संप्रदाय में निर्गुण संप्रदाय जो भी आते हैं। तो मेरी जिज्ञासा है कि बिहार में भी इस तरह की संत परंपरा है क्या, बिहार प्रदेश में? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार पहले तो आपका। अभी जो मैं चर्चा कर रहा था मक्खली गोसाल की, बिहार के ही तो थे। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो जानकारी दी थी कि जो वैदिक सभ्यता है हमारे यहाँ, ईसा पूर्व 1500 के बाद उसकी सभ्यता मिलती है हमारे यहाँ, यानी आज से लगभग 3500 साल पहले। उससे भी 100 साल पहले व्रात्य सभ्यता बिहार में पनपी थी, बिहार में पनपी थी। अच्छा, और बिहार में भी कहाँ पनपी थी? अंग क्षेत्र में। अच्छा, अंग क्षेत्र में ही वो व्रात्य सभ्यता पनपी थी। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? केवल कह देने से तो कोई बात नहीं होगी। अथर्ववेद में, 4 वेद हैं, उनमें एक अथर्ववेद है। अथर्ववेद में एक कांड है व्रात्य कांड। अच्छा, व्रात्य कांड उसका नाम ही है, व्रात्य कांड। व्रात्य कांड में लगभग 200 मंत्र हैं व्रात्य से संबंधित।
उन्हीं 200 मंत्रों में ये बातें बताई गई हैं कि वैदिक सभ्यता से भी 100 साल पहले हमारे यहाँ इस विचारधारा के, ये जो निर्गुण विचारधारा जिन्हें आप कह रहे हैं, निर्गुण सगुण की अवधारणा तो बहुत बाद में आई। अच्छा, बहुत बाद में आई। हमें यह कहना चाहिए कि जो हमारे मूल निवासी थे और मिट्टी से जुड़कर अच्छा, अपनी जड़ों से जुड़कर जो चिंतन वो हमें दे रहे थे, और वो चिंतन क्या था? वो चिंतन ये था कि हम इतना सा कमाते हैं लेकिन इतने बड़े दर्शन में पूरे ब्रह्मांड भर का जो चिंतन है उसमें हम जीवन जीते थे। ये जो विचारों की समृद्धि, संपन्नता हमारे पूर्वजों ने दी हमें, उसे हम कहते हैं ये व्रात्य सभ्यता का मूल था। अच्छा, मूल था ये व्रात्य सभ्यता का। और उसी परंपरा में आगे चलकर मक्खली गोसाली, उसी परंपरा में वे स्वयं दास थे। देखिए, बौद्ध तो राजकुमार थे, राजकुमार, उनको संपन्नता थी, ठीक है। और वास्तव में ये क्या, ये नास्तिक परंपरा है। अगर दर्शन की भाषा में मैं कहूँ तो एक आस्तिक परंपरा है जो वेद की ओर जाता है। दूसरी नास्तिक परंपरा है जहाँ आप चारवाक की बात करते हैं और भी बहुत सारे लोगों की बात करते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक जानकारी दी कि वैदिक सभ्यता 4 स्तंभों पर टिका हुआ, उन चारों का विरोध चारवाक भी करते थे, मक्खली गोसाल भी करते थे। यानी ये व्रात्य सभ्यता है वह उनका विरोध करता था। क्यों विरोध करता था? क्योंकि वो इस देश की मिट्टी में आयातित था, वो इस देश की उपज नहीं थी वो विचारधारा। अच्छा, वो दूसरी जगहों से वो चीजें आई थी यहाँ। आप कह सकते हैं कि वो आर्य परंपरा की जो यात्रा है वो वहां से चलकर आई, और हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आर्य जब ये कहते हैं कि संवदध्वम संवदध्वम संवो मनानसी जानताम, हम सभी साथ साथ चले, हम सभी साथ साथ बोले, अच्छा, हम सबके मन एक समान हो। लेकिन ये बातें जो हैं आगे चलकर हम कहीं व्यवहार में परिणत होते तो नहीं देखते हैं। जो कमजोर तबका था उनको साथ साथ बोलने नहीं दिया गया, उनको साथ साथ चलने नहीं दिया गया, और उनके मन, और जो आगे थे समृद्ध लोग थे, उनके मन एक समान कभी हो नहीं पाए। तो वो चूंकि व्यवहार में हो नहीं पाए तो उनके प्रतिरोध में समय समय पर बहुत सारे संत आए, जिनमें मैंने आपको चर्चा की अभी मक्खली गोसाल की, और मक्खली गोसाल की तरह के वहाँ और भी बहुत सारे मुनि थे, बहुत सारे थे। अच्छा, जिसकी चर्चा व्रात्य कांड में, अगर आप अथर्ववेद को पढ़ें तो व्रात्य कांड में आपको उनके नामों का उल्लेख मिलेगा, उनकी चर्चा मिलेगी, उनका जीवन दर्शन क्या था वह मिलेगा। और सब लोगों ने अपने अपने स्तर से जो है कुछ विचारें दी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मक्खली गोसाल ने हमें आजीवक धर्म का एक दर्शन दिया, उन्होंने हमें जो है एक सियातवाद दिया। देखिए, विदेश में एक विधेयवाद का दर्शन आया। अच्छा, कब आया ये विधेयवाद का दर्शन? 18वीं शताब्दी में। और पूरा भारत पागल हो गया कि विधेयवादी दर्शन में कार्य कारण संबंध होता है, कार्य कारण संबंध होता है। ये मनोविज्ञान का एक ऐसा दर्शन है जिसमें कार्य कारण का संबंध होता है। लेकिन ये तो 18वीं शताब्दी में आया। लेकिन इससे भी 2200 साल पहले भारत की मिट्टी में एक आया था सियातवाद। सियातवाद की चिंता हमने नहीं की, या उस वाद को हमने आम जनों तक फिर से पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हमसे चूक हुई है, हमसे भूले हुई है। और जब पाश्चात्य दर्शन ने हमें बताया कि ये विधेयवाद है तो हम उसके पीछे दीवाने हो गए, हमारे पहले दीवाने हो गए। बसव भी तो यही बात कहते हैं कि तुम अपना काम करो, अपना काम, बाकी चिंता छोड़ दो। यही बात मक्खली भी कह रहे हैं, यही बात बसव कहते हैं। और इस परंपरा के तमाम कवि हमें यही कहते हैं कि अपने हिस्से का काम तुम करो, बाकी चिंता तुम छोड़ दो, बाकी चिंता तुम छोड़ दो। कर्म आधारित का मतलब होता है श्रम संस्कृति का संपोषण करना। श्रम संस्कृति ही भारत की मूल संस्कृति है।
हमारी जो किसानी व्यवस्था है गांव ने की, उसी को जी आगे किया। हमारी जो किसानी व्यवस्था है गांव की, हाँ। पूरे भारतवर्ष की, वो किसानी संरचना के मूल में श्रम संस्कृति है। और इसी संस्कृति को समय समय पर कभी बसव आते हैं, कभी अक्क महादेवी आती हैं, कभी मक्खली आए थे, बाद में कबीर आते हैं, नानक आते हैं, दादू आते हैं, रैदास आते हैं, बहुत सारे परंपरा के लोग आए और हमें उस परंपरा को आगे विकसित करना है। ये बात अलग है कि बीच बीच में प्रतिरोध में कई दूसरी धाराएं भी आई जिन्होंने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस श्रम संस्कृति को उन्होंने बाधित करने की कोशिश की। जी सही बात, यही है। बहुत बड़ी बात आपने बताई। ये जो आप अभी एक बात कह रहे थे, वचन यात्रा की बात कर। हाँ, वचन यात्रा। तो ये इन्हें इस अनुवाद का ही परिणाम है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में ये जो अनुवाद हमने किया, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वज्जिका में भी किया, वज्जिका में भी हुआ। तो इसका परिणाम है कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वचन यात्रा की परिकल्पना हो रही है कि गांव-गांव में जाते हैं, अंगिका की जो वचन है तो उनको गाकर सुनाने की ये जो यात्रा है, ये तो चल रही है ना? जी, ये बहुत अच्छा स्मरण आपने कराया मुझे डॉक्टर साहब। असल क्या है कि देखिए, अभी मैंने मक्खली गोसाल की चर्चा की, लेकिन उनका जो साहित्य है वो अभी सर्वसुलभ तो है नहीं। कहीं कहीं उसे डिकोड किया गया है। बराबर की पहाड़ियों, बराबर पहाड़ी की गुफाओं में उनके वचन थे, अब उसे डिकोड किया गया है। उनकी बहुत सी बातों को, वचनों को कहीं कहीं उद्धृत किया जा रहा है, लेकिन समग्र रूप में जिस रूप में वचन हमारे सामने वो नहीं आया। तो हम क्या करते हैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ तो बहुत सारे संत हुए, लेकिन वचन तो मुकम्मल रूप में हमारे हाथ में है। ये ठीक है कि इसकी चौहद्दी दक्षिण भारत है, लेकिन इनकी जो वाणी है ये दक्षिण भारत केवल नहीं है, भारत क्या की वाणी, उत्तर, क्या पूरब, क्या पश्चिम, यानी इस भारत की जहां भी श्रम संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, ये उनकी चीज है। तो इधर हमने कोशिश यह की है, बिहार में अंगिका में इसका अनुवाद हो चुका है, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, वज्जिका में भी हो गया, मगही में मुझे जानकारी नहीं हुआ, लेकिन वज्जिका में हो गया है, और मैथिली भोजपुरी में तो हुआ ही है। हम अंग क्षेत्र में क्या करते हैं, इसे लाल कपड़ों में लपेट कर जी, और लाल कपड़ों में लपेट कर, और लाल इसलिए कि इसका रंग, चाहे ये किसी भाषा में हो, रंग इसका लाल है। और लाल होने का एक कारण यह है कि ये प्रेम का प्रतीक है। हम ये कहते हैं कि ये ग्रंथ जो है एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने के लिए प्रेम की बात करता है, प्रेम का प्रतीक है। तो हम इसे लाल कपड़ों में, कबीर ने कहा ना, लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। भाई प्रेम की यही यात्रा होती है, और यही वचन की यात्रा है। तो हम क्या करते हैं, हमने वहाँ कई टोलियाँ बनाई है, छोटी छोटी टोलियाँ बनाई है, और उन टोलियों को बनाकर हमने क्या किया है, मान लीजिए हम किसी गाँव में गए, और वहाँ कीर्तन मंडली चलती है और भी लोग जमा होते हैं शाम के समय काम काज करने के बाद, तो हम इसको वहाँ रखते हैं और कहते हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। लोगों को तब तक वचन की जानकारी नहीं होती है। हम कहते हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। हमारा धर्म ग्रंथ तो भाई यही है। तो क्या है धर्म ग्रंथ? तो हम इनमें से कुछ वचनों का वहाँ चुन करके 2, 3, 4 उसका पाठ करवाते हैं। और हम ये कहते हैं कि देखो, हम इसका केवल भावानुवाद तुम्हारे सामने करें, इसकी मूल बात ये है। फिर ये बात करते करते हम कभी कबीर की तरफ चले जाते हैं, कभी नानक की तरफ जाते हैं, कभी रैदास की तरफ जाते हैं, कभी फिर हम इनकी ओर लौटते हैं, और अपने कवियों के बीच आवाजाही करके इसके मर्म को वहाँ के बीच स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यह है अंग क्षेत्र के सभी गांव में यह किताब उपलब्ध हो, ताकि हमारे उस गांव से प्रस्थान करने के बाद भी अगर किसी बच्चे में, अगर किसी गांव के निवासी के मन में इससे जुड़ने की, इसको देखने की, इसको जानने की जिज्ञासा हो, तो वह वहाँ पर आए और इसके वचनों को देखे। और सबसे अच्छी बात क्या है डॉक्टर साहब जानते हैं? क्योंकि ये छंद में नहीं है, ये मतलब तुकबंदी में नहीं है।
हाँ। इसको पढ़ने में और इसके आसान अर्थ को है। समझने में कोई बाधा नहीं है, बाधा नहीं है, बहुत ही सामान्य है, बहुत ही सहज है, सहज बात है। और उस क्षेत्र की अपनी भाषा में। हाँ, अगर वहाँ अंगिका भाषा चलती थी, अंगिका में है ये। अभी आप देखिए जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, अच्छा, पहली बार भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो लोकल टंग है, लोकल जो स्थानीय बोलियां हैं, उनको विकसित करने की बात चल रही है। उसका सबसे बड़ा लाभ हम वचन को फैलाने में कर रहे हैं। हम उनसे अंगिका में बात करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी चीज है, तुम्हारी भाषा में है, तुम्हारी भाषा में है, तुम्हारी चीज है, इससे जुड़ो। अच्छा, हम दूसरे किसी की वहां आलोचना नहीं करते, किसी की आलोचना करने में हमारा विश्वास भी नहीं है। ठीक, हम केवल अपना काम करते हैं, अपना काम करना है। और हम ये कहते हैं कि इसके प्रति जो हमारा जुड़ाव है, हम ये कहते हैं ये हम अपने जड़ की ओर लौटने की कोशिश। हमारे जो बच्चे हैं उनको हम फिर से अपने जड़ों की जानकारी देते हैं। अच्छा, कि तुम्हारे पूर्वज क्या थे। अच्छा, है ना। आज पाश्चात्य का जो आक्रमण हम पर हो रहा है, जो आक्रमण हो रहा है, उसके आलोक में हम ये बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वज क्या थे, उनको और वहाँ एक आईना है, आईना है ये कि तुम इसको अगर देखोगे तो तुमको इसमें एक एक वाणी में तुम्हें अपनी बात दिखाई पड़ेगी। तो ये वचन यात्रा हमने वहाँ आरंभ किया है और अभी तो हमने शुरू ही किया है। अच्छा, हमने अभी शुरू ही किया है और हमारे पास जितनी प्रतियां हैं वहाँ बहुत जल्दी आपके यहाँ से और भी प्रतियां मंगवाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि वहाँ हर गांव में एक किताब जरूर रहे, हर गांव में, कहीं भी रहे, किसी जगह रहे, पर एक किताब हर गांव में जरूर रहे, ताकि लोगों के पास ये किताब न भी हो तो वो वहाँ है। और वहाँ एक शर्त मैंने यही लगाई हुई है कि ये लाल कपड़े में ही लिपटी हुई चीजें रहे। हाँ, लाल कपड़े में होनी चाहिए। जो इसका रंग है, इसी रंग में, इसी रंग के कपड़े में यह लिपटी हुई चीज रहे। और इसको जिस समय हम खोलेंगे तो खोलेंगे बसव के वचन से। अच्छा, हाँ, वो करेंगे। फिर हम जिसकी चर्चा करनी हो करेंगे। हम मक्खली की जानकारी देंगे, हम कबीर की जानकारी देंगे, हम तमाम जो हमारे पूर्वज संत कवि थे उनकी जानकारी देंगे और इस तरह हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जी, तो आपकी बातों से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वचन है ये सारे विश्व की बात करती है, क्योंकि ये श्रम संस्कृति जो है ना किसी एक जगह की नहीं है, नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान की संस्कृति भी विश्व में है, तो ये वैश्विक विचारधारा को लेकर चलने वाली बिल्कुल है। और खासकर ये है कि बसवेश्वर जीवन, एक सुखमय जीवन, एक सुखद जीवन बिताने के लिए जो चाहिए उसको उन्होंने इस रूप में दिया। जी 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 जी, जीने की कला बताई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जो गृहस्थ व्यक्ति है, गृहस्थ व्यक्ति जो है, हम घर में रहेंगे और लोग कहते हैं कि तुम मंदिर चलो, तुम मस्जिद चलो, तुम यहाँ चलो, तुम वहाँ चलो। हम कहते हैं कहीं मत जाओ, तुम घर में रहो, गृहस्थ हो तुम, और घर में रहकर तुम घर से बाहर निकल सकते हो। हाँ, घर में रहकर, ये घर में रहकर, ये घर, ये शरीर जो घर है, शरीर ही घर। अभी आपने विषय की चर्चा की डॉक्टर साहब। विषय मूल रूप से 5 ही होते हैं। अच्छा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय। और 5 विषय में हमारी इंद्रियां 5 है। 5 इंद्रियां। हमारी इंद्रियां क्या है? विषयों में लिप्त है। ये ग्रंथ हमें बताती है कि तुम अपनी इंद्रियों को उन विषयों से कैसे अलग कर सकते हो। अच्छा, देखिए गीता में भी कहा गया है, गीता में भी एक जगह कहा गया है कि जैसे कछुआ यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः, यदा संहर्ते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः तानि सर्वाणि संयुक्त आसेहि मसेहि वस्यन्ति यानि। इसका मतलब ये हुआ जैसे कछुआ संकट के समय में अपने सभी अंगों को खोल के भीतर कर लेता है, वैसे ही मनुष्य विषयों में से, जो व्यक्ति विषयों में से अपनी इंद्रियों को समेट लेगा, वो मुनि हो जाएगा। मुनि हो जाएगा। मुनि माने हम अपने घर में रहकर भी हमने अपने घर से हमने अपने को समेट लिया। यह जो तत्व है, यह जो तत्व ज्ञान है, ये हमें
वचन देता है। वचन देता है। ये हमारे जो पूर्वज मुनि हैं, संत हैं, वो हमें ये ज्ञान कराते हैं कि तुमको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तुमको कहीं मंदिर नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है, तीर्थ नहीं जाना है। पर्यटन के लिए जहाँ जाना चाहो चले जाओ तुम, लेकिन अपने घर में रहकर ही घर में रहना, इन वचनों के द्वारा गृहस्थ होते हुए भी तुम मुनि हो सकते हो। अच्छा, ये घर की परिकल्पना जो है, ये जो कल्पना है, ये अद्भुत कल्पना, यही मंदिर है, ये अद्भुत कल्पना, यही हमारी मंजिल है कि हम सांसारिक कामों में लिप्त रहें। हमारे बच्चे हैं, परिवार है, परिवार के सारे लोग हैं, हमारा जो कर्म है सबके प्रति दायित्व है, वो सब कुछ करें हम। और सब कुछ करते हुए भी एक कछुए की तरह निर्लिप्तता का जो भाव है, हम कैसे विषयों में से अपने को खींच लेंगे, रहकर भी निर्लिप्त हो जाएंगे। जी जी जी, बहुत बड़ी ये बातें वचन सिखाती है। जी जी, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी चर्चा हुई, बहुत खुशी हुई। तो दर्शकों को ये दिखाए कि अंगिका में कुछ वचनों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, रस मिलता है उनको। जी 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 जी। बसवेश्वर का एक प्रसिद्ध वचन है, बहुत प्रसिद्ध है। ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ क्या बात है, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ। क्या बात है। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी बात को बसव कहते हैं इकी छक है, इकी छक है, मतलब सामान बिखरा हुआ है दुनिया में। इकी छक है, इकी छक है, इकी छक है। अहनो ने कह लो दहो, ऐसा मत कहिए। ये आपनो छक है, ये भी हमारा है। ये आपनो छक है, ये आपनो छक है, ये आपनो छके, अहनो कहे लग हो, सब अपने हैं, ऐसा कहिए, सब अपने हैं। हे कुंडल संगम देव, आपनो र बेटा कहलावे लो दही सदाए, सब अपने ही पुत्र हैं। जिसे कहा गया है कि अमृत पुत्र बनो। ये क्या है कि ये अपना है, वो पराया है, ये उसका है, ये उसका है, सब अपने हैं। ये कितनी ऊंची बात है। और ये बातें सरल शब्दों, और इतनी सरल शब्दों में, इसमें न कोई तुकबंदी है, कुछ नहीं, न कुछ है। और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई किसी चीज का काम कर रहा है, ये सब वो भी घर बैठे बैठे इसको समझेगा। ये इतना बड़ा तत्व ज्ञान, इतने सरल शब्दों में बसव ने जो कही है बातें, ये तो आज जन जन तक ले जाने की जरूरत है। सही बात, कितनी मूल्यवान बातें कही। तो ये तो जिसको हम लोग भक्ति की भाषा में तत्व ज्ञान कहते हैं, ये तत्व है, तत्व की बात यही, यही मेटाफिजिक्स है। जी 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 जी। अच्छा, उसी तरह और एक ये बहुत प्रसिद्ध वचन है ये भी, ಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂಧದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಸತ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಅಸತ್ಯದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಹದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭಾವದ ಬಲದಿಂದ ಎನ್ನ ಭವದ ಕೇಡು ನೋಡಯ್ಯ, भवद केड़ु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह। मतलब ये सुनकर ही जो है मन में एक उजास आ जाता है, एक रोशनी फैलने लगती है। अंगिका में ही इसको हम अपने लोगों को समझाते हैं। अच्छा, कि ज्ञान के बलों से अज्ञान रो नाश बुझो। हम बहुत ज्ञानी बनते हैं, है ना, ये है, ये है, ये है, ये है, और जो समझना चाहिए वो समझते नहीं है। और जब समझते हैं तब जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके होते हैं। तो ज्ञान के बलों से अज्ञान रो नाश बुझो। बहुत ज्यादा ज्ञान के बल पर अज्ञानता बढ़ती है, और रोशनियों के बलों से अनहार रो नाश बुझो। बहुत ज्यादा रोशनी के आने से जो अंधेरा है वो खत्म होता है। सत्य के बलों से असत्य रो नाश हुआ है। जब सत्य का प्रकाश आएगा तो असत्य खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। हम क्यों किसी की आलोचना करेंगे, हम अपनी रोशनी फैलाने की बात करेंगे तो वो अंधेरे में पड़ जाता है। सब लोग तो यही कह रहे थे, बुद्ध ने भी कहा आत्म दीपो भव, अप दीपो भव।
हाँ, सब लोग तो यही कहते हैं, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। अपने ज्ञान। और ये कहते हैं कि पारस के बलों हाँ, से पारस लोहत के के बल से। नाश वैरे। अवलोकन अगर आप में पारस का गुण आएगा तो लोहा लोहा- खुद सोना बन लोहे जाएगा, का गुण चला जाएगा। वो लोहे का गुण उसका चला जाएगा। देखिए अच्छा। संत के पास जाने से यही होता है। हाँ हाँ हाँ। तो कुंडल संग कुड़- के कुड़ल। शरण के अनुभाव से, कूड़ल संगम। कूड़ल संग के शरण के अनुभाव के बलों से हाँ। हमरो भवर नाश है। देखो जी, हाँ, भव जब हम किसी भव संत जगत के का संपर्क में जाते हैं, हाँ, हमें जो अज्ञानता का अंधकार है हाँ, वो वही धीरे भव है। धीरे 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 खुद ब खुद खत्म हो जाता है। उसका उसका जो सत्संग है, संतों का सत्संग भी जो है, उनका जो साहचर्य भी है, वो भी एक रोशनी का पुंज है, हाँ, ज्ञान का पुंज है। सत्संग वही है। वो कबीर सत्संग कहते है हैं वो। सत्संग की बात। तो इतनी ये बड़ी है। बात और इतने सरल शब्दों सरल में शब्दों ये में। बता रहे हैं। इसके लिए जो दूसरे ऋषि मुनि लोग हैं बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की करते हैं, लेकिन ये कितने सरल शब्दों सरल में शब्दों में सरल ये बताते हैं कि इस पूरे जो पद है इसका मूल यही है हाँ, कि तुम्हारा जो दारिद्र्य है उसका एक ही निदान है शिक्षा। शिक्षा। हाँ, वो तो है। एक ही शिक्षा निदान ही है शिक्षा चाहिए। तुम ज्ञान की ज्ञान शरण में ज्ञान जाओ, की शिक्षा की शरण में जाओ। Yes. तुम्हारी परिस्थिति में वही एक है जो परिवर्तन ला सकता है, बाकी कोई परिवर्तन Yes, नहीं सही लाएगा। बात। न जाति लाएगी, न कुछ धर्म नहीं। लाएगा, कोई नहीं लाएगा। सबको शिक्षित होना चाहिए। और इतनी बड़ी बड़ी बातों को ये दो चार पंक्तियों में कह जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है ये अलम प्रभु जी जी। एक विशिष्ट व्यक्ति है ऐसा। ये गोरखनाथ परंपरा जी, जी। के, गोरखनाथ जैसे ही थे ये भी जी जी उस जी। परंपरा के, नाथ जी, जी। से परंपरा में आए। तो अलम प्रभु वो शून्य संपा ये एक अनुभव मंडप था बसवेश्वर के समय, उसके अध्यक्ष थे। अच्छा, और उनकी अध्यक्षता में ये तो चर्चाएं होती थी, जी जी और चर्चाओं का फल ही ये वचन साहिब। जी जी। वाह। तो ये कहते हैं भगवान के संदर्भ में बहुत जी, जी, बढ़िया जी, है। जी जी। ನಾ ದೇವನಲ್ಲದೆ ನೀ ದೇವ, क्या ನೀ बात है, ದೇವನೇ, क्या बात है। ನಾ ದೇವನಲ್ಲದೆ ನೀ ದೇವನೇ, ನೀ ದೇವನಾದಡೆ ಎನ್ನನೇಕೆ ಸಲಹೆ. बिल्कुल बिल्कुल। ಆರೈದು ಒಂದು ಕುಡಿತೆ ಉದಕವ ನೆರವೆ, ಹಸಿದಾಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಓಗರವ ನಿಕ್ಕುವೆ. ನಾ ದೇವ ಕಾಣ ಆಹಾ. ಈಶ್ವರ, आहा ನಾ ದೇವ ಕಾಣ. आहा हा हा। देखिए जब आप पढ़ते हैं हाँ, उसी से मैं अपने अंदर एक उजास, एक रोशनी अनुभव करने लगता हूँ। मैंने ये वचन सुनते ही हमारे अंदर एक अंतर यात्रा अंतर यात्रा शुरू होती कि हम देव नहीं छिए है। हाँ, तो कि तो देव छको। हाँ, लोग कहता है कि तुम क्या हो, तुम क्या हो. और संत हमें बताते कि तुम्हारे अंदर ईश्वर है। हाँ, तो वो कहते कि हम देव नहीं छिए, नहीं 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 तो नहीं तो कि क्या तुम नहीं हो? तो कि तुम हो तो छको। देव से ही प्रश्न करते. हाँ, तू देव छको तो हाँ। हमरा कहनो न पीसे छो। हाँ, अगर तुम देव हो तो हमरा मुझे क्यों नहीं पालते पोसते yes, हो? हाँ, तुम तो अपने सब कुछ लेते हो, सही, मेवा मिष्ठान सब कुछ, सब कुछ. लेकिन मुझे क्यों नहीं, मेरा नहीं, पोषण क्यों नहीं करते हो? ये जो मूर्ति पूजा की है हाँ, ना, मूर्ति उससे पूजा का विरोध आते है। हैं. जी जी। हाँ, मूर्ति प्यासलो छो तो Yes, एक चुरू पानी देबो। हाँ, अगर मैं प्यासा प्यासा हूँ हूँ तो तुम मुझे एक चिल्लू, इतना सा भी चिल्लू भर पानी दे सकते हो, चिल्लू हाँ. भर पानी। अरे, अब भूखलो छे तो एक हाँ. और नैवेद्य देबो हाँ. हमरा। हाँ, मैं भूखा हूँ भूखा हूँ. तो तुम मुझे थोड़ा सा नैवेद्य दे नैवेद्य. सकते हो। Yes, जो तुम्हें भोग हम्म. चढ़ता है तुम हमें दे दो। हाँ, दे दो. सही यह ले ली हम देव छे गुहेश्वर। हाँ, वो कहता मैं है ही देव हूँ. इसीलिए मैं देव हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कर्म करता हूँ, यस, ये बात. क्योंकि मैं कर्म करता हूँ। चैतन्य है, जीव है, हाँ. देव है, देव का गुण है. हाँ, अगर आप ये- अनुमति दें हाँ, तो मैं यहाँ कबीर की एक बात करूँ। अच्छा. देखिए कबीर हुए 16वीं शताब्दी में, हाँ, 16वीं शताब्दी में हुए, 16वीं शताब्दी में, और जगदीश चंद्र बोस तो हुए 20वीं शताब्दी में।
उस समय उन्होंने एक सूत्र दिया कि ये जो पेड़ पत्ते हैं हाँ, उसमें भी जीवन जीव होता है। है। हाँ, तो पेड़ पौधों में जीव होता है, यह सिद्धांत उन्होंने दिया 20वीं शताब्दी में, ठीक है। ठीक। लेकिन कबीर 16वीं शताब्दी में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जाते के पाती तोड़े तामाहे जीव। अच्छा। जिस पत्ते को तुम तोड़ने जा रहे हो उसमें जीवन जीव होता है। है, हाँ, जीव है। जीव है। अजामाहे पाती तोड़े, जिस पर अर्पण करने के लिए तुम पत्ते को तोड़ रहे हो तामाहे निर्जीव। निर्जीव। हाँ, जिस पर चढ़ाने के लिए, पत्थर पर चढ़ाने के लिए तुम पत्ते को तोड़ रहे हो वह निर्जीव है। यानी एक निर्जीव के लिए एक सजीव तुम को एक जीवन की हत्या कर रहे हो। कितनी तो बड़ी ये बात, ये परंपरा जो है यहीं से वहां गई से है। अकमा देवी में भी यही बात है। हाँ, वो सर अल्लम प्रभु देव ने जो बातें कही, यही बातें मूर्ति के विरोध में कबीर भी कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब कि यहाँ बसव हो, अल्लम प्रभु देव हो, कबीर हो, सब लोग चूंकि वे मिट्टी के से जुड़े थे, मिट्टी तो वो मिट्टी की बात करते हैं, वो जन जन की बात करते हैं। स्थान का भेद हो सकता है कि हम यहाँ हुए, कोई कहाँ हुआ, कोई कहीं हुआ, लेकिन बातें देखिए जो अल्लम देव प्रभु कह रहे हैं वही कबीर वही बात कर रहे हैं। तो ये अद्भुत बातें हैं, और ये इतने सिंपल तरीके से, इतने सामान्य तरीके से, इतने सरल शब्दों के माध्यम से ये उसके अर्थ में प्राण भर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। यही भारतीय परंपरा है। भारत में कहीं भी रहे, उनका चिंतन एक ही है। चिंतन आज भारतीय ज्ञान की परंपराओं पर फिर से आरंभ हो गया है, चर्चा आरंभ हो गई, चर्चा शुरू हो गई। यही है। उसका जड़ यही है, उसकी जड़ यही फैली हुई है। जी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया पद आपने सुनाया। आपके चर्चा में बहुत सी बातें निकली। जी जी, बहुत सार्थक चर्चा कर सकता हूँ मैं। और आप बेंगलुरु आए, इसका लाभ हम ले रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, अकमा देवी की भी अगर एक चर्चा करें हम लोग, चर्चा करेंगे। ये स्त्री होकर भी उस जमाने में यहाँ की बहुत बड़ी संत थी, और उसके पहले हमारे यहाँ महिलाओं में ये परंपरा नहीं मिलती है। अच्छा, मैंने महिला भी, अकमा देवी तो 12वीं शताब्दी के, वही मैंने कहा, उसके पहले कहाँ कोई नहीं मिलती है, कोई नहीं मिलती, बाद में मिलती है। तो इसीलिए इसका भी एक पद कम से कम आप सुना दें। अच्छा, आप देखिए, ये भगवान से, चंद्रमल्लिकार्जुन से मिलने का वर्णन कर रही है। क्या बात है। क्या काणुत्ता काणुत्ता कंगड़ मुच्चिदे नोडव्व, ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಮೈ ಮರೆದೊರಗಿದೆ ನೋಡವ್ವ, ಹಾಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ನೋಡವ್ವ. ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವನ ಕೂಡುವ ಕೂಟವ ನಾನೇನೆಂದರಿಯದೆ ಮರೆದೆ ಕಾಣವ್ವ. देखिए, किसी हम दिव्य रोशनी से मिलने जाएं तो उसके पहले ही हमारे जीवन में रोशनी आ जाती है। वो कहते हैं कि राह निहारते बंद करी ले लिए माए। हम जाने की सोच ही रहे हैं कि जाने के पहले मेरी आंखें बंद होती जा रही हैं। देखिए क्या महात्म्य है उसका। सुनते सुनते हमरो सुधबुध हेराय गेले माए। हे माँ, उसके बारे में उसका यश वर्णन सुनते सुनते हम अपनी सुधि, अपनी चेतना सब भूल गए। सब भूल गए, नहीं रहा कुछ भी। मैं का जो भाव है वो नहीं रहा। और बिछैले बिछौना के परवाह नहीं रही गेले माए। बिछावन बिछी हुई है, कौन उसकी चिंता कर रहा है? कौन उसकी चिंता कर रहा है? यहाँ तो आंखों में नींद है कहाँ? चिन्ह मल्लिकार्जुन देव के मिलन सुख के, चिन्ह मल्लिकार्जुन से मिलने का जो सुख है, किसी को ध्यान में है कि हमें बिछावन लगी हुई है कि क्या लगा हुआ है? मर्म नहीं जानी होश गमाई दे लिया माए। अपने को भूल गए, ना मर्म का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि अद्भुत मिलने के बाद वो है ना, एक ही भाव रह गया, दो द्वैत नहीं रहा। इसमें द्वैत का यहाँ कोई भाव नहीं, ये भाव नहीं। देखिए, ईश्वर वो है जो हमें बताता तो कुछ नहीं है, लेकिन हम उसके निकट होते तो एक में हो जाते उनसे, एक में। द्वैत का कोई भाव नहीं रह जाता है। वो खुद ब खुद सुदामा गया कृष्ण से मिलने के लिए,
सुध-बुध खो बैठे, उसको पता ही नहीं था कि मुझे क्या मांगना है, क्या मांगना क्या मांगना है। वो सब कुछ उसके जीवन में आ गया। ये जो है ईश्वर के समीप हम जाते हैं तो हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। ये जो भाव है गांव में, इस भाव को भरने वाले जो इतने सारे हमारे संत कवि हुए, इनके ही ज्ञान की रोशनी से एक नए भारत का निर्माण हो सकता है। क्यों नहीं? जहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज इसकी जरूरत है। हाँ, ये जो वचन मैंने आपसे आरंभ में कही थी कि समगजध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, तो जब इन संतों की वाणियों का प्रसार होगा, इसका वास्तविक अर्थ तभी सामने आएगा कि हम सब साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बोलेंगे और सबका मन एक समान होगा। क्या ईश्वर, क्या भक्त, क्या भक्त, सब एक जैसे हो जाएंगे। तो ये अद्भुत है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वचनों को पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत है। फैलाना चाहिए। वो दुनिया में कोई भाषा हो, हर भाषा में इन बातों को ले जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत बड़ी बात हुई। आज आपके साथ चर्चा करते करते हम लोग इसी में लीन हो गए, वचन साहित्य में, है ना। वो शक्ति, अद्भुत शक्ति है इसमें। तो आपने अंगिका में वचन का अनुवाद करके एक तरह से उत्तर में एक जागृति फैली है। बसवेश्वर हो, शरण हो, अकमादेव हो, है ना, इनके वचनों के माध्यम से वो लोग समझ रहे हैं। जैसे आपने कहा, ये अपनी चीज है, अपनी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भी समझता है अपनी चीज है, श्रमिक भी समझता है अपनी चीज है। तो ये लोगों से जुड़ने के लिए है ना, इसकी आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है, अधिक आवश्यकता है। आज के संदर्भ में और ज्यादा समीचीन, सारी दुनिया अशांत वातावरण में है, तो आज के संदर्भ में ऐसे संतों की जरूरत है, शरणों की जरूरत है, उनके वचनों की जरूरत है। नहीं, ठीक है। आज बसव हमारे पास नहीं है, आज अल्लमदेव प्रभु हमारे पास नहीं है, अक्कम महादेव भी नहीं है, कबीर नहीं है, ये मक्खली गोसाल नहीं, पर उनका ये वचन तो है। यही हमारे बसव है, यही बसव। इसी को आज हमारे दिल से लगा करके इसकी वाणी को गांव-गांव तक फैलाना है, यही बसव है। शरीर नहीं है, उनकी चेतना तो है, उनकी चेतना तो है। इस चेतना के जागरण से ही एक नए भारत, एक नई दुनिया का आगाज हो सकता है। तो आपकी बातों से ये स्पष्ट हो गया कि वचन साहित्य जो है इसको गांव-गांव फैलाना चाहिए, क्योंकि वचन में ये एक वैश्विक संपत्ति है, ये केवल एक जगह की नहीं है, सबकी संपत्ति है। जी जी, सबके जीवन के उद्धार के लिए, है ना, अशांति को दूर करने के लिए, देश में जो वातावरण है शांति लाने के लिए और सबको समेटने के लिए, समता भाव के लिए, भेदभाव को दूर करने के लिए, है ना, ऐसी चीज की जरूरत है। इस पर आपने रोशनी डाली और बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिलकर के। आप बेंगलुरु आए तो इसका उपयोग हमने किया। नहीं, मुझे भी बहुत लाभ हुआ। मैं तो इससे बहुत आत्ममेव हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ आना और बसव समिति में नहीं आना ये संभव नहीं है। जब मैं नहीं जानता था यहाँ किसी को, तब भी इसके प्रति एक आकर्षण था। आज तो मेरे दीप स्तंभ आप हैं, अरविंद जत्ती जी हैं। ये पटना गए और कितनी हार्दिकता से लोगों को इन्होंने गले लगाया। जब जैसी आवश्यकता हमें हुई, इन्होंने कहा कि आप कीजिए, साधन हम उपलब्ध करवाएंगे। और बहुत ही सरल मन से, बहुत ही सरल भाव से इन्होंने वो सारा कुछ किया। तो वास्तव में हम लोग तो एक निमित्त हैं, मूल तो अरविंद जत्ती जी या ये संस्था है, बसव समिति है, जो पूरी दुनिया में आज इस चेतना को फैलाने के काम में, अभियान में लगी हुई है। इसीलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके माध्यम से, आपका तो मैं आभार निवेदित करता ही हूँ, आपके माध्यम से मैं बसव समिति, अरविंद जत्ती जी का और इस काम में लगे हुए उन तमाम लोगों का भी आभार निवेदन करता हूँ, जो लोग ज्ञान की रोशनी जन जन तक ले जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत आभारी हम लोग भी हैं बसव समिति की ओर से। मैं आपका आभार मानता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने अंगिका में जो वचन साहित्य आपने अनुवाद किया है उस पर रोशनी डाला। तो एक सुखद वातावरण, सुखद संदर्भ, एक तरह से ये सत्संग हुआ। सत्संग, हाँ बिल्कुल, ये सत्संग ही है, इसलिए सत्संग ही है। तो आपको आभार। नमस्ते।
ಬಸವಾ 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 ಹರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಭು ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಗುರು ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಲಿಂಗ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಜಂಗಮ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಭಸ್ಮ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಪಾದೋದಕ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಸಾದ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಚಿನ್ನಿಧಿ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಚಿನ್ನಾದ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಚಿದ್ಬಿಂದು ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಚಿತ್ಕಲ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಚಿದಂಗ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ನಿರಂಜನ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ನಿರ್ಗುಣ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಅಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಉಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಮಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ನಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಮಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಶಿಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ವಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಯಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಓಂಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಹ್ರೀಂಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಸಿವುಂಟೆ, ಜಲಕ್ಕೆ ತೃಷೆಯುಂಟೆ. ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಸಿವುಂಟೆ, ಜಲಕ್ಕೆ ತೃಷೆಯುಂಟೆ. ಮಹಾಜ್ಞಾನ
ಸ್ವರೂಪಂಗೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂಗೆ ವಿಷಯವುಂಟೆ 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 ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಸಿವುಂಟೆ ಜಲಕ್ಕೆ ತೃಷೆಯುಂಟೆ 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 ಸದ್ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದು ಸದ್ಗುರು ಕಾರುಣ್ಯವ ಪಡೆದು ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಂ ಮಾಡುವ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯಂ ಮಾಡುವ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ಮಾಡುವ ಮಹಾಭಕ್ತಂಗೆ ಬೇರೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆಯುಂಟೆ ಮಹಾಭಕ್ತಂಗೆ ಬೇರೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಯಕೆಯುಂಟೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವ ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಅಪ್ಯಾಯನ ಅರಸಲುಂಟೆ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಉರಿಲಿಂಗ ಗುರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿ ಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ 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 ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಹಸಿವುಂಟೆ ಜಲಕ್ಕೆ ತುಷೆಯುಂಟೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂಗೆ ಮಹಾಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಂಗೆ ವಿಷಯವುಂಟೆ 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 ಅಮೃತಕ್ಕೆ 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 ಹಸಿವುಂಟೆ